Everybody, well, good afternoon, everybody. God bless you. I want you to know it is our honor to be here with you. We're so grateful to Pastor Hanif and Mina for the invitation to come and spend some time with you. And so before I go any further, I want you to celebrate Pastor Hanif. Glory to God. When you die and go to heaven, He wants you to step into your reward now. That's why Jesus taught His disciples to pray and say these words. Our Father who art in heaven, your name is holy, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So He's not waiting for you to get to heaven. He's wanting you to use your faith to bring heaven to earth. So that you overcome the world by using your faith. And in the book of Galatians we find these words that those who are justified will live by their faith. Alright, I need you to help me again. You need to tell your neighbor, friend, I've got faith. I have a faith. I'm going to get more faith. और मेरा ईमान मजबूत है. I'm going to grow in faith. और मेरा ईमान मजबूत है. And I'm going to live by faith. और मैं ईमान में जिंदा हूँ. I don't know about you. और मैं आपके बारे में नहीं जानता. But for this person, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ. God's promises to me खुदा के वादे मेरे साथ हैं. are yes. और वो वादे हाँ के साथ हैं. And therefore, और इसलिए by faith, ईमान के साथ I'm going to add my amen. और मैं खुदा के हजूरी में हूँ. Now understand that. आप इस बात को समझें. This is a spiritual principle. और ये रूहानी असूल है. It is an unbreakable law. और वो तमाम जो असूल हैं कवानीन को तोड़ते हैं. I'm not presenting to you something new. और मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा. I'm presenting to you something ancient. और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत अहमियत के हामिल है. For when God created man in His image and after His likeness, जैसे कि आप सब जानते हैं खुदा ने बनी हुई इंसान को अपनी छवि पर बनाया. He said unto Adam and Eve, और उनका नाम हवा और आदम रखा. Everybody hold your hand up. और मैं आप चाहता हूँ कि आप इस तरह से करें. He said, be fruitful. आप सब कहें कि मैं फलदार हूँ. He said, multiply. और खुदा मुझे मेरी बरकत बढ़ाएगा. He said, replenish the earth. और खुदा मुझे बहाल करेगा. He said, subdue the nations. और मैं कौमों तक बुझाऊंगा. And He said, have dominion. और खुदा मुझे तमाम चीजों पर इख्तियार बख्शेगा. This is the will of God for mankind. और ये खुदा की मर्जी है तमाम बनी हुई इंसान के लिए. Be fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. कि बढ़ो फलो और जमीन को ममूर महकूम करो. It's never changed. और ये कोई तब्दीली नहीं है. It never will change. और ये कभी भी नहीं तब्दील होगा. And the first man, Adam, operated in perfect faith. और जो पहला इंसान था जो आदम था उसने इस पर अमल किया. Until sin came. और जब तक गुनाह नहीं आया था. And when mankind sinned, he lost dominion. और जब बनी हुई इंसान ने गुनाह किया तो उसने तसल्लुत को इख्तियार को गवा दिया. So God's will was this. और खुदा की मर्जी तब कायम. Mankind is to be fruitful, to multiply, to replenish, to subdue, and have dominion. और खुदा की मर्जी ये है कि बनी हुई इंसान क्या करे जमीन को ममूर महकूम करे. But when man sinned, he lost his ability to exercise dominion. और क्योंकि गुनाह की वजह से उसने अपना इख्तियार और तसल्लुत जिसको दिया गया था उसको गवा दिया. The place of dominion is where faith prevails. और फिर क्या हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है. Let me explain that to you. और मैं आपको बताना चाहता
हूँ today, आज के दिन when I use my faith, मैं अपने ईमान का इस्तेमाल करता हूँ I come back into dominion. और मैं फिर तसल्लुत हासिल करता हूँ। That's why evil spirits obey my voice. और इसलिए जो अबलीसी तस्वीरें हैं मेरी आवाज को फॉलो करती हैं। That's why miracles occur when I pray for people. और इसीलिए मौजज़ात होते हैं जब मैं दुआ करता हूँ। Not because I'm special, और इसलिए नहीं कि मैं खास हूँ, but because Christ has made me right with God और क्योंकि मसीह ने मुझे अपने लिए चुना है and given me back dominion. और उसने मुझे दोबारा से इख्तियार दिया है। Before Jesus, क्योंकि खुदा तक man had no dominion. खुदा के हम देखते हैं कि जीसस के पास And so the God of this world, Satan, और जो इस जहान का खुदा है जो कि अबलीस है was happy to let mankind और वो अबलीस जो चाहता है कि वो इंसान को परेशान करे be fruitful, multiply, replenish, and subdue. और वो नहीं चाहता कि इंसान जो है फले बढ़े और जमीन को ममूर और महकूम करे। But when mankind without dominion और क्योंकि जो बदलो इंसान है तसल्लुत के बगैर is fruitful, multiplying, replenishing, and having dominion, क्या इंसान के पास बड़ो फलो और जमीन को ममूर और महकूम होने की बरकत है? that's where nations rise against nations. और हम देखते हैं That's where there's wars and rumors of wars amongst the people. और हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा बदलो इंसान का हर एक चीज पर इख्तियार है। Because without dominion, we're fighting one another. और अगर हमारे पास इख्तियार ना हो तसल्लुत ना हो तो हम एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहें। Without dominion, we're living with national pride, not kingdom understanding. ताकि हमें इख्तियार दिया गया है ताकि हम खुदा के आसमानी मुकामों की जो समझ है उसको हासिल कर सकें। And so all over the earth, there are multiple nations. और हम देखते हैं कि पूरी कायनात में And in each of those nations, people are being fruitful. They're still having babies. और जितनी कायनात है तमाम जो अक़वाम है नेशंस है हर एक का पर्पस है। And the population on planet Earth has gone from 6 billion to 8 billion in the last 20 years. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 28 सालों में जो दुनिया की जो आबादी है वो बहुत ही ज्यादा है। Listen to those words. और इन अल्फाज को बड़े ध्यान से सुने। Mankind is still multiplying. और जो बदलो इंसान है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। From 6 billion to 8 billion in the last 20 years. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले जो 28 सालों में जो बदलो इंसान है 28 बिलियन हो गए हैं। And so those nations are all rising up to subdue one another. और देखते हैं कि जो नेशंस है वो बढ़ती जा रही है, कौमें ज्यादा होती जा रही हैं। And they're doing whatever is necessary to use the resources that are in the earth. और वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, ये तमाम कुदरत के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। But I want you to understand, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। this is one of the most powerful truths in the gospel of the kingdom. क्योंकि ये जो आसमान की जो बादशाह है इसका एक हकीकी असूल है। That when Jesus came to the earth, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए, died and rose again, और फिर मुर्दों में से जिंदा हुए तीसरे दिन, gave his life in exchange for ours, और उसने अपनी जिंदगी आपके लिए दे दी। he came to make man the righteousness of God. और उसने क्या किया? तमाम अपनी रास्तबाजी बंदो इंसान को दी ताकि हम लोग रास्तबाज बने। That's why 2 Corinthians 5:17 through 21 और इसलिए खुदा का कलाम सिखाता है says, if any man is in Christ, he's a new creation. और जो कोई ईमान में मजबूत होता है वो मसीह में नया मखलूक है। All things are passed away and all things have become new. और तमाम पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नई हो गई। It says, he who knew no sin became sin for us, और क्योंकि खुदा ने तमाम जो गुनाह हैं हमसे दूर किए हैं, so that we might be made the righteousness of God. और फिर इस तरह से हम रास्तबाज रहते हैं खुदा के हुजूर। Ask your neighbor, अपने हमसाये से कहें, is Jesus in you? क्या खुदा ने आपको बचाया है? Ask him, is Jesus in you? क्या खुदा आपके अंदर है? Does he live in you? क्या खुदा आपके अंदर है? If they said yes, अगर आपका हमसाया कहते हैं yes, then tell them right now, और फिर इस वक्त उससे कहें, you are the righteousness of God in तो the earth. फिर आप जमीन में रास्तबाज हो गए। Not will be, not will become righteous, you are righteous. क्योंकि आप रास्तबाज बन चुके हैं जमीन पर। So the righteousness of God is what restores dominion to mankind. और जब हम रास्तबाज होते हैं तब भी हम उस इख्तियार तक वापस
रसाई हासिल करते हैं। And that's why you and I can work together for the King of Kings and the Lord of Lords to see His kingdom come. और इसीलिए खुदा ने हमें चुना है कि हम सब मिलकर आसमान की बादशाहत में दाखिल हों और आसमान की बादशाहत की जो मुनादी है दुनिया के कोने-कोने तक करें। And that's why in the earth there is a revival of believers all over the planet. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी जमीन पर 5,000 से भी ज्यादा हजारों की तादाद में जो है ईमानदार हैं। Hundreds of thousands and millions of people are coming to Christ every week. और हर हफ्ते thousands के हिसाब से millions के हिसाब से जो है लोग क्रिश्चियंस हो रहे हैं। And God's kingdom is invading the earth. और खुदा की जो बादशाहत जमीन पर कायम हो चुकी है। It's one of the signs that's in the Word of God. और ये सिर्फ खुदा के कलाम की वजह से है। That tells us what time it और is. खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है। So what I want you to understand today और आज हमें और क्या समझने की जरूरत है? is that God has given us back dominion. और खुदा ने हमें दोबारा से इख्तियार दे दिया है। Now how many understand और कितनी जिंदगियां इस चीज को समझ गई हैं कि खुदा ने हमें तो फिर से इख्तियार दिया है। you can possess dominion तो क्या आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं? and not use it? क्या आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं या नहीं? You can have access to something तो आपको रसाई हासिल करनी है but not make the power available to yourself. और आज आपने खुदा की कुव्वत को नया तौर पर लेना है। And this is what we're talking about from the Word of God. और मैं वो ताकत आपको खुदा के कलाम से मिलती है। The power that we all need is the power of faith. और ये पावर जो है ईमान की जो कुदरत है। The just will live by faith. और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ईमान लेकर आना है। All things are possible to those who believe. तमाम चीजें मुमकिन हैं उनके लिए जो ईमान लाते हैं। And so God is wanting us to understand और खुदा हम सब से चाहता है that when we will learn the laws of faith और जब हम ईमान के असूलों को सीखते हैं and begin to live by faith, और जब हम ईमान के साथ रहते हैं we'll begin to experience day after day the increase that God has determined from His Word. और फिर जब हम ईमान में बढ़ते जाते हैं तो हम हर रोज नए तौर पर ईमान के अगले दर्जा तक पहुंचते जाते हैं। Now I don't know about you, और मैं आपके बारे में नहीं but that's जानता good news to me. और मैं ये अपने आप का तजुर्बा बता रहा हूँ Because by faith, क्योंकि ईमान के साथ my Bible tells me और क्योंकि मेरा खुदा का कलाम मुझे बताता there's है no good thing that God will withhold from me. और इससे कोई अच्छी चीज वो पास नहीं रखेगा। By faith, my Bible tells me क्योंकि खुदा का कलाम मुझे सिखाता है ईमान के साथ that God's hand is upon me for good. और खुदा का जो कभी हाथ है मुझ पर भर जाता है। By faith, my Bible tells me क्योंकि ईमान के साथ मेरा खुदा का कलाम मुझे बताता है that everything I place my hand to will prosper. और जिस चीज को मैं हाथ लगाऊंगा उसको वो प्रॉस्पर हो जाएगी। By faith, ईमान के साथ my Bible tells me क्योंकि मेरा कलाम मुझे बताता है I'll be above only and never beneath. और मैं और सबसे बुलंद हूँ ताकि मैं नीचे हूँ I'm blessed when I'm coming in और जब मैं बाबरकत हूँ जब मैं घर में and आता I'm हूँ blessed when I'm going out. और जब मैं घर से बाहर जाता हूँ। My field is blessed, my cattle are blessed, everything in my life is blessed. मेरे खेत बाबरकत है, मेरी कटौती बाबरकत है। By faith, ईमान के साथ my Bible tells me क्योंकि मेरा खुदा का कलाम मुझे बताता that है even when my enemies come against me, और कोई भी मेरे सामने नहीं खड़ा हो they सकता will fall before me. और वो मेरे सामने गिर जाएगा। Now I ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ How do you think I know by faith that's what God's Word says to me? क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है किस तरह से ईमान रखने की जरूरत है। Because my faith is growing daily. क्योंकि मेरा ईमान जो है रोज रोज बढ़ता है I'm hiding God's Word in my heart. और मैं खुदा के कलाम को भरपूर तौर पर अपनी जिंदगी में रखता हूँ। I'm learning what God has said belongs to me as a covenant son of a father. क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में कसरत से जमा होता जा रहा है। And just as every person here is a son or daughter of a father, जितनी जिंदगी यहाँ पे मौजूद हैं आप सब खुदा के बेटे और बेटियों में शामिल हैं। when we get born again, we come under the authority of God Himself. क्योंकि आप सब लोग नए सिरे से पैदा हो चुके हैं इसलिए आप सब खुदा उनके इख्तियार में हैं। And this is where the Bible teaches us और इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है that we're heirs and joint heirs with Jesus Christ. और फिर इसलिए खुदा का कलाम सिखाता है कि हम खुदा के हजूर कसरत से झुकेंगे। We're heirs of God, and the covenant of Abraham belongs to us. वादे किए हैं वो हमसे ताल्लुक रखते हैं। The covenant of Abraham. लेकिन जो
जो इब्राहिम के साथ जो वादा किए थे, the covenant that God announced to a man, और जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किए थे, where he said to Abraham, और वही जो इब्राहिम से कहता है, in blessing, और बरकत के, I will bless you, तो जिसको तू बरकत देगा मैं उसको बरकत ठहराऊंगा, and in multiplying, और उसको मैं बढ़ाऊंगा, I will multiply तो you. मैं आपको भी बरकत बनाऊंगा। Abraham, इब्राहिम, I'm going to make your descendants और मैं आपको खुदा के हुजूर से बरकत दूंगा, like the stars of heaven और जैसे हम देखते हैं कि आसमान के and सितारों the की sand माने that's on the और seashore. जमीन के गर्द की माने, Now I need you to listen to these words, और मैं चाहता हूँ कि आप इन अल्फाज को ध्यान से सुने। because if you are born again, अगर आप नए सिरे से पैदा हो चुके if हैं, you've accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, कि आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, then you were brought into the covenant of Abraham. क्योंकि आप खुदा की कवानीन के मुताबिक चलते हैं, And so God's promise to you क्योंकि खुदा के वादे आपके साथ हैं, is that in blessing I will bless you, क्योंकि खुदा आप जिसको बरकत देंगे खुदा उसको बरकत देगा, and in multiplying I'm going to multiply और you. खुदा आपको बरकत बनाएगा। So I want everybody to say, I'm blessed, आप सब कहें मैं बरकत हूँ, I'm blessed मैं बरकत हूँ in Jesus' name, यीशु मसीह के कादिर नाम में, and God is multiplying me. और खुदा मुझे बढ़ाएगा, He's increasing my capacity to know Him. और खुदा मेरी कुव्वत को मेरी हिकमत को बढ़ाएगा ताकि मैं बेहतर तौर पर खुदा को जान सकूं। But watch this for just a minute. और इस बात को सोचिए एक मिनट के लिए, Dominion is restored in Christ. और आप मसीह में इख्तियार को हासिल कर सकते हैं। The Bible says that the reason that God made covenant with Abraham और खुदा ने जो इब्राहिम के साथ जो कवरेंट बनाए इसकी एक वजह है, is because he believed God. क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था। It doesn't say he believed in God. और वो ये नहीं कहता वो खुदा में ईमान रखता था, It says he believed God. वो खुदा में ईमान रखता था, And because he believed God, it was accounted to him as righteousness. और क्योंकि वो खुदा में ईमान रखता था इसलिए वो खुदा की ताबेदारी में था। Well, because you believed Jesus as Lord and Savior, और जब आप खुदा यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात दहिंदा कबूल करेंगे, and you've been made the righteousness of God, और फिर आप रास्तबाज ठहरेंगे, then you have come into the family of faith. और फिर आप खुदा के खानदान में शामिल हो जाएंगे। And so God said to Abraham, तो खुदा ने जिस तरह से इब्राहिम से कहा, Abraham, I'm going to make your descendants और फिर खुदा ने कहा कि इब्राहिम like the stars वो आसमान के सितारों की माने and like the sand. और जमीन के जो समुद्र की रेत की माने, Everybody say, like the stars और आप सब कहें आसमान के सितारों की माने and like the sand. और लाइक द रेत की माने, Say it with me, like the और stars सब कहें आसमान के सितारों की माने and like the sand. और रेत के ज़रात की माने। Now, many people would say और बहुत से लोगों को कहने की जरूरत है that that's just talking about the number of people that would come to faith, और जितनी जिंदगी आज खुदा यीशु मसीह में ईमान में मजबूत हैं, because the grains of sand are immeasurable और आज हम देखते हैं कि जो रेत के ज़रात को गिनना बहुत ही मुश्किल है, and the stars in the sky are uncountable. और जो आसमान के सितारे उनको भी तादाद में लाना बहुत मुश्किल है। But I submit to you और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ that what God was saying to Abraham, जिसने जो इब्राहिम का खुदा है, that I'm going to make your descendants like the stars and like the sand. और खुदा चाहता है कि आप भी इब्राहिम की तरह को बरकत पाएं। Now, how many of you are born again? और आप में से कितनी जिंदगियां जो नए सिरे से पैदा हो चुकी हैं? How many of you have Jesus as your Lord and Savior? क्या आपको शख्सी तौर पर खुदा की जरूरत है? How many of you are made the righteousness of God in Him? क्या आप चाहते हैं कि खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर काम करे? If your answer is affirmative, और अगर आपका जवाब ये है, then you are of the seed of Abraham. और फिर आप इब्राहिम की औलाद में से हैं, Therefore, you are like the stars and like the और sand. फिर आप आसमान के सितारों की मानद और रेत के ज़रात के ज़रों के मुताबिक हैं। I submit to you that like the stars and like the sand और मैं आपको उनमें शामिल करता हूँ जैसे आसमान के सितारे हैं और रेत के ज़रात हैं। is this. और ये He was speaking about dimensions. और वो हम देखते हैं ये इख्तिलाफ के बारे में बात की जा रही है, That by faith, क्योंकि ईमान के साथ we're the only form of creation हम एक बनी हुई इंसान हैं, that can operate in two dimensions at the same हम time. एक ही वक्त में दो काम नहीं कर सकते। I'm in the world, but I'm not of it. और मैं अगर इस
इस दुनिया में रहता हूँ तो मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। And right now you see me standing on this stage. अभी इसी वक्त आप मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। But I'm also seated with Christ in heavenly places. और मैं इसी वक्त आसमानी मुकामों में भी हूँ। I operate in 2 dimensions at the same time. और इस वक्त मेरी 2 डिमेंशंस हैं, एक आसमानी मुकामों पर, एक यहाँ पे जमीन पर। And by faith I can bring the 2 dimensions together. और इस तरह से ईमान के साथ मेरा जो है 2 तरफा ताल्लुक है। This is what God wants for every one of you. और आप सबसे भी ये खुदा चाहता है कि आपका भी इस तरह से खुदा के साथ ताल्लुक हो। To understand it's through the spirit of faith आप खुदा के that you have authority in heavenly dimensions क्या आपके पास आसमान और जमीन का इख्तियार है? and you have authority on the earth. क्या आपको जमीन पर इख्तियार है? And that's why Jesus, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने through the apostle Paul, said these words. और पौलुस रसूल से कहा कि ये अल्फाज बयान कर। Look, we don't wrestle against one another. हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। We don't wrestle against one another. हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। But we wrestle against principalities and powers and spiritual wickedness and rulers of darkness. और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें रूहानी असूलों के बारे में और रूहानियत के बारे में बात करनी चाहिए। Remember when God called Abraham. देखिए आप इस बात को याद रखें कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, Abraham met the high priest of God named Melchizedek. और हम देखते हैं कि इब्राहिम जब खुदा के काहिन से मिला, And Melchizedek said to Abraham, और इब्राहिम को खुदा के काहिन ने कहा, Blessed are you, Abraham, और उसने कहा कि इब्राहिम तो बाबरकत है, possessor of heaven and of earth. और खुदा जो आसमानी खुदा बादशाह है। We know that God rules from the heavens, और हम जानते हैं कि खुदा आसमानों पर हुकूमत करता है, but because Abraham believed God, क्योंकि इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा, he too became the possessor of heaven and of earth. और इसलिए वो खुदा के हुजूर रास्तबाज गिना गया। Therefore, it didn't matter what land Abraham traveled through. और खुदा को इब्राहिम को हम देखते हैं कि उसको खुदा ने बेशुमार जगह दिखाई। It didn't matter how much divination or witchcraft or religion existed in that nation. और हम इस बात को भी सामने रखते हैं कि इस दुनिया में कितने मज़ाहिब मौजूद हैं। Everywhere Abraham went, he possessed और हर एक जो अल्फाज जो इब्राहिम ने कहा, the heavens and the earth. और खुदा ने उसको बताया। Are you catching this? यस। So God wants you to understand और आज खुदा आप सबसे चाहता है कि आप लोग समझें that you have dominion in 2 dimensions. आज आप सबके पास इख्तियार है 2 अतराफ का, आसमान पर का भी और जमीन का भी। So again, tell your neighbor, और फिर एक दूसरे से कहे हमसाये से, ए दोस्त, he's talking to you. और आज खुदा हमसे बात कर रहा है। Tell him, don't miss this. और आज हमें इस मौके को जाया नहीं करना। He's talking to you. और वो आज खुदा आपसे बात कर रहा है। If I heard him correct, और अगर मैंने बेहतर तौर पर सुना tell him है, if I heard him right, और मैं अभी सुन रहा हूँ, he said you have dominion in 2 dimensions आप सबके पास 2 तरफा इख्तियार है, एक जमीन पर और एक आसमान पर, at the same time. और एक ही वक्त में। That you're in the world but not of it. और आप अभी इस वक्त जमीन पर भी हैं और दूसरी वक्त आप खुदा के साथ रूह में भी मुत्तफिक हैं। And though you're sitting here next to me, और जो आपके साथ बैठा हुआ है, because you're in Christ, you're seated with him as और well. फिर इन मसीह में आप एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। I think it's time we learn how to use our authority. आज हमें जरूरत है अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। I think it's time we learn how to use our faith on purpose. क्योंकि अब ये वक्त है कि हम अपने ईमान का कसरत से इस्तेमाल करें। I think it's time that we fulfill God's will for our lives. और आज ये वक्त है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कसरत से पूरा करें। So tell them, I don't know about you, और मैं आपको दोबारा से कहना चाहता but हूँ, from this day forward, आज के दिन से आने वाले दिनों में I'm going to be fruitful, मैं बाबरकत होऊंगा, I'm going to multiply, और मैं बढ़ूंगा, I'm going to replenish the earth, और मैं जमीन को मामूला महकूम I'm करूंगा, going to subdue the earth. और मुझे जमीन पर तसल्लुत बख्शा गया है, Because Jesus gave me back dominion. और खुदा ने मुझे दोबारा से इख्तियार दिया है, And now I will exercise that. और मैं खुदा के इख्तियार में हूँ। But see, I know that I'm teaching predominantly to believers here. और मैं देखता हूँ कि मैं ईमान में देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सी जिंदगियाँ ईमानदार बैठी हुई हैं। And I do want to take this opportunity to say this. और आज आप सबके पास मौका है कि आप खुदा में और ज्यादा गहरे तौर पर मजबूत हों। If you're here today and you've never accepted Christ as your Lord and अगर Savior, आज आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, I'm going to give you an opportunity to do that today. आज मैं आपको मौका देता हूँ ताकि आप खुदा
के कलाम को कबूल करें, Because Jesus is the only wise God, the true and living God. क्योंकि वो हमारा हकीकी खुदा है And He is the only one that can forgive man of his sins and make them right with the Almighty. क्योंकि हमारा खुदा अकेला तन्हा खुदा है जो आप सबको रास्ताबाज बनाना चाहता है। There's no other name, there's no other religion. आसमान और जमीन पर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है और ना कोई ऐसा मजहब है। Because ultimately Christianity is not a religion. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक मजहब नहीं है, It's a family of believers. और ये ईमानदारों का खानदान है। It's a family of believers. ये ईमानदारों का खानदान है And so if you are outside of the family, और हम उस खानदान का हिस्सा हैं, it's okay, we welcome you in. और हम आपको एक दूसरे को दावत देते हैं, खुशामदीद बोलते हैं, Because our God is big enough. क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा हमारे साथ है। He's already the Father of all spirits. वो हमारी रूहों का खुदा है And He welcomes you into His family. और वो हमें अपने खानदान में दावत देता है। This is the gospel of the kingdom. और ये आसमान की बादशाहती है। Praise the Lord. आमीन। Is everybody okay? Yes. Pastor Anif, am I doing all right? Yes. यानी कि बेहतर हो गया खुदा का कलाम। Praise the Lord. Praise the Lord. So that was my introduction. अगर आप चाहते हैं कि खुदा का खादम और ब्लेस करे और ये बरकत आपके लिए जारी है तो अपना हाथ दिखाएं। That was my introduction. I'm ready to preach now. और मैं तैयार हूँ खुदा के कलाम को ज़्यादा बयान करने के लिए। I want you to understand times and seasons. मैं ईमान रखता हूँ कि जितना हमने खुदा का कलाम सुना है, आप इन बातों को समझ गए हैं कि आप चुने हुए लोग हैं। I want you to understand the dimensions of faith. आप में इस बात को समझ गए कि ईमान में आपको मजबूत होने की जरूरत है। Because when you get that foundation inside of you, और जब आप रूहानी तौर पर, इनरली तौर पर, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, everything about this word will begin to change your life. और फिर जो खुदा के कलाम की हर एक बात है आपको तब्दील करेगी। This goes from being a religious book to a book of promises. और ये हमारी जो किताब है, ये वादों की किताब है। This goes from being a book that others call a religious book और दूसरे इसको कहते होंगे ये मजहबी किताब है, to being the only source whereby men can get faith. और ये एक वाहिद रास्ता है जो हमें ईमान की तरफ लेकर जाता है। Because if you're going to live by faith, अगर आप ईमान के साथ रहते हैं, if you're going to grow and develop strong faith, और अगर आप मजबूत ईमान पैदा करना चाहते हैं, faith only comes one way. और एक ही रास्ते से हम ईमान को पा सकते हैं। And it's exactly how it's coming to you और today. आप सब जानते हैं कि ईमान कैसे पैदा होता है। Faith comes by hearing ईमान सुनने से पैदा होता है and hearing God's word. और सुनना मसीह के कलाम से। How many of you feel built up today? और आज कितनी जिंदगियां हैं जिनका ईमान और ज्यादा मजबूत हुआ है। You feel hopeful and full of understanding. और आज आपके ईमान की मजबूती के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। That's because the spirit of faith is ministering to your spirit. और जो ईमान का जो रूह है आपकी जिंदगी को मजबूत करेगा ताकि आप खुदा के साथ कायम रह सकें। And your spirit is receiving the faith of Jesus Christ. और जब आपका जो रूह है ईमान का जो बीज बोएगा, Now here's the next key. और फिर ये क्या है, आसमान के मुकामों की चाबी है। 2 Corinthians chapter 4 verse 13. और दूसरा कुरिन्थियों का 4 बाब उसके 3 आयत है। Those of us that have received the spirit of faith, और जितनी जिंदगियां ईमान के साथ देखती हैं, because we believe, क्योंकि हम ईमान रखते हैं, we will speak. और जो हम ईमान रखते हैं उसको हम बोलते हैं। In other words, what you believe और एक दूसरे अल्फाज में जो हम ईमान रखते हैं concerning God's word and His promises about your life और हम देखते हैं कि खुदा के जो वादे हमारी जिंदगी के साथ हैं, is what's going to begin to come out of your mouth. और वो हमें अपने मुंह से उसको दोहराने की जरूरत है। You're not going to be walking around और हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, going, woe is me, और हमें खुदा में मजबूत रहने की जरूरत nothing's working out for me, है। और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा। oh, I'm broke, और मैं खुदा के कलाम से बाहर, I don't have a job, I can't have a baby. और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास औलाद नहीं है। No, God's promise says, और खुदा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपने I will not lack nor come behind in any good thing.
और खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा हम पर हर एक नेमत तैयार करता है। Faith declares that I will be fruitful and multiply in the earth. और ईमान में जब आप मजबूत होते हैं तो आप बरकत ठहरते हैं। Faith declares that by his stripes I was healed. और क्योंकि ईमान बताता है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। So I must make two more statements, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, and then I'm going to try to close. और फिर हम खुदा के कलाम को खत्म करेंगे। The one statement is shocking to most people. The one statement is shocking to most people the first time they hear it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक जो है हम खुदा के सीक्रेट को जान सकते हैं। And I've said this several times since I've been here in Pakistan. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम पाकिस्तान में खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, And so are you ready to shock your friend? और आप हो सकता है आप अपने फ्रेंड को शॉक कर दें। I want you to look one of the people next to you right in the eye, जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दोस्त से कहें tap him on the shoulder, और अपने दोस्त को हिलाएं, उसको कहें and tell him this: और उसको कहें, Jesus isn't going to do anything else for you. और आप अपने दोस्त को हैरान कर सकते हैं कि खुदा आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। Tell him. एक दूसरे से कहें क्या खुदा आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। Jesus isn't going to do anything else for खुदा you. आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। People go, "Oh, वो लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसे क्यों है? what do you mean he's not going to do anything आप else ऐसे for me? क्यों कह रहे हैं? खुदा सब कुछ कर सकता है। I thought that's why we're here." और मैंने खुदा का कलाम सुना है, खुदा सब कुछ कर सकता है। The truth is, लेकिन हकीकत ये है, Jesus already did it. हकीकत ये है कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। He doesn't need to do anything अब else. उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। You just have to use your faith and grab it. आपको सिर्फ अपने ईमान को इस्तेमाल करना है। And this is why it's important for you to understand और that you're यही like the इम्पोर्टेंट है stars कि आपको इस बात को समझने की जरूरत and है। like the sand. और लाइक आपको आसमान के सितारों की मानित बनना That है, while you're on the earth, और आपको इस जमीन पर you reach into heavenly dimensions आपको आसमानी मुताबिक तक रसाई हासिल and you करनी है, take the promise of God और आपको खुदा के वादों को लेना है, and you bring it into the natural. और आपको उसको रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी में रखना है। This is where faith has power. और इस तरह से आपका ईमान मजबूत होगा। I hope you're learning something today. आमीन। खुदा मैं जानता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है आज। I got one more word for you, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, and then I want to pray for people. और फिर मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। But before today, और आज मैं आपको बताना चाहता I हूँ, was praying about what I should teach you. और मैं तब जब स्टडी कर रहा था कि मैं खुदा के कलाम को बयान करने को हूँ, And you think I'm joking, और मैं आपको बताऊँ, but that really was my introduction. और ये खुदा की मर्जी है, That was not my message. और ये मेरा कलाम नहीं था। My message is this: और मेरा जो पैगाम था, if you will make room for God, और अगर आप खुदा के लिए बनाए गए हैं He'll fill it. तो वो आपको भर देगा। If you create a place for Him to come, और अगर आप खुदा के रूह से ममूर हैं He will come. He will come. तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। It's up to you to make room. और आपको क्या है करना है? खुदा उनकी हजूरी में झुकना है। It's up to you to create a place. और ये आप पर मुनसर आप किस कदर बरकत को हासिल करते हैं। And so I want to encourage you. और मैं आप सबको बहाल हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, Be busy about making room for God. और खुदा के लिए अपने आप को लिए वक्त करें, Be busy about creating a place for God in your life. और फिर वक्त निकालें और खुदा के लिए एक सेपरेट टाइम निकालें, Get yourself in the place where you recognize और ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे आप बैठ कर खुदा के कलाम को God watches over His word, खुदा आपकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करेगा, and it's His word that He'll perform. और वो एक कलाम आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। So when you make room for the prophetic, और जब आप बेहतर तौर पर खुदा को वक्त देंगे, you understand that everything that God has said in this book और फिर जो कुछ लिखा है आप उन अल्फाज को समझते जाएंगे belongs to you. जो आपसे ताल्लुक रखती है। You don't have to wonder if it's God's will. फिर आपको किसी बात की परेशानी की जरूरत नहीं है, If it's in the word, और आपको क्योंकि खुदा का कलाम then it's सिखाता a है, prophetic word to you. क्योंकि ये नबूवत का कलाम है। The testimony of Jesus खुदा की गवाही जो है, is the spirit of prophecy. और वो नबूवत की गवाही है, And so God, who watches over His word, और जो खुदा के कलाम को सुनती हैं wants you to understand उनको समझने की जरूरत है
that when you cause there to be room for the prophetic in your life, और उन्हें खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है। you're literally saying, God, that word will work in और me. आज अपने खुदा को कलाम जो खुदा का कलाम है वापस खुदा को बताना है। And I challenge you to watch what God will और मैं do. आपको चैलेंज करता हूँ खुदा आपको बरकत देगा। Healing is prophetic. Healing is prophetic. ये खुदा की नबूवत है Provision is prophetic. और खुदा की जो मुहैया बरकत है। Soundness of mind is prophetic. और खुदा आपको ज़हनी इत्मीनान देगा। Soundness of body is prophetic. और खुदा आपको बेहतर तौर पर मुकम्मल तौर पर परफेक्ट करेगा। Every promise of God is prophetic. और हर एक जो खुदा का कलाम है वो परफेक्ट होगा। And this is why Numbers chapter 23 verse 19 और says, खुदा का कलाम हमें सिखाता है has he not said it? अगर हम उसने कुछ नहीं कहा And shall he not do it? तो वो नहीं करेगा। Has he not said it? अगर उसने नहीं कहा And shall he not cause it to और come उस to वजह से नहीं pass? करेगा। So when you make room for God's word, और जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे you're making room for God to come into your तो life. फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। Now today, whether you realize it or not, क्योंकि आप सब खुदा के कलाम को समझ चुके हैं I have been causing the word of God to make room in you. और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को रखें That's why you feel hopeful. और फिर आप बरकत होंगे और आपके अंदर एक नई उम्मीद होगी। God is causing your hearts to swell today. और खुदा आपके दिलों को इस तरह से भर देगा ताकि आप उसकी खिदमत कर सकें। He's increasing your capacity to know Him and to know His ways. वो आपकी हिकमत को बढ़ाएगा ताकि आप और ज्यादा मसीह को जान सकें। Therefore, right now, और इसी वक्त से there is no promise from God और ऐसा कोई भी वादा उसका नहीं है that He'll withhold from anybody here. और वो हमें बताना चाहता है He already did it. और वो हर एक काम हमारे लिए करेगा It is finished. और उसने तमाम काम कर दिया है And by faith, all you have to do और आप ईमान के साथ सब कुछ कर सकते is receive it. हैं और खुदा आपके साथ है। Lift your hands towards heaven, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं and I'm going to pray for you. कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं ताकि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें, आपके खानदान के लिए, घराने के लिए, और खुदा के पाकरू को वेलकम करें अपने दोनों हाथ लहराकर ताकि उसका पाकरू आपको छुए और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। दोनों हाथ लहराएं ताकि आपकी बरकत जारी हो आसमान से। दोनों हाथ लहराएं, सब लहराएं, क्योंकि जब हम अपने तन और मन से अपने जिंदा खुदा की वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान आता है। तो जरूर है कि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें। Amen. So say this with me. All of your promises, Jesus, खुदा मैं तेरे सब वादों से मोहब्बत करता हूँ are yes to me. और क्योंकि वो मेरे लिए हाँ के साथ हैं The promise of healing, और खुदा जो शिफा का वादा है the promise of deliverance, और जो शिफा बहाली का वादा है the promise of prosperity, और जो शादमानी का और बहाली का वादा है the promise of victory. और जो फतहयाबी का वादा है, All of your promises तमाम जो वादे हैं are yes to me. और खुदा मेरे लिए वो हाँ है। All right. I said you say it. मैं चाहता हूँ कि आप सब कहें, I want to hear you. मैं आप सबको सुनना चाहता हूँ। Now let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। All of God's promises, आपके लिए तमाम जो वादे हैं खुदा के, how many of His promises does all leave out? आपको किन वादों की जरूरत है? Somebody, come on. You're smart people. All of God's promises जितने भी खुदा के वादे हैं are yes to you. और वो सब हाँ के साथ हैं। Let me ask the question. मेरा आप सबसे सवाल है, How many of God's promises खुदा के कितने वादे हैं does all leave out? जिसकी हमें जरूरत है? The answer is none of them. और हम बता सकते हैं कि इसका जवाब है बहुत ज्यादा खुदा के। If every promise of God is yes to you, अगर खुदा का हर एक जो वादा है वो हाँ के साथ है, it means there's not one promise of God that's no. और इसका मतलब यह है कि कोई एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसका जवाब ना हो। So whatever need you came with today, और अब आज जरूरत इस बात की है, अगर आपकी कोई भी जरूरत है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, physical, emotional, spiritual, हो सकता है वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, ज़हनी हो या कोई भी परेशानी हो, provisional, whatever need
you came with अगर today, आपको किसी चीज की जरूरत है, ये कोई भी आपका मसला है, God's promise is to meet that need. और खुदा वादा करता है कि वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। You may need strength in your body. आपको अपने आप को खुदा की हजूरी में देना है। You may need certain pains to leave. आज हर तरह की जो बीमारी, हर तरह की दर्द जाती रहेगी। You may have been suffering torment in the night seasons, और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है, वो यीशु नाम से जाती रहेगी। or have a diagnosis of some kind of disease. और हो सकता है आपके जिस्म में किसी तरह की कोई बीमारी हो। I'm here to tell you, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, all of God's promises मैं खुदा के वादों को देखता हूँ, include freedom and deliverance from anything और मैं खुदा की आजादी को यहाँ पे मांगता and हूँ। everything that has attacked mankind और जो हर एक चीज जो बनी इंसान से ताल्लुक रखती है, because of sin in the earth. और गुनाह की वजह से। So I want you to do this real quick, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप, and I want to hear you. मैं आपको सुनना चाहता हूँ। I want you to say out loud, मैं चाहता हूँ कि आप सब बुलंद आवाज से बोलिए, all of God's promises are yes to me. तमाम वादे खुदा के मेरे लिए हाँ हैं। तमाम खुदा के वादे मेरे लिए हाँ हैं। Say it again. दोबारा कहें, Say it like you believe it. और उस तरह से कहें जितना आप ईमान रखते हैं, और ऊंची आवाज से कहें कि खुदा के तमाम वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। तो खुदा के तमाम वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। Say it like an army. और आप अपने दुश्मन को बताएं बुलंद आवाज से, All of God's promises are yes to me. तमाम खुदा के वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। If I ask you अगर मैं आपसे पूछता हूँ to convince me तो मुझे मुत्तमईन करिए that you believe that all God's promises are yes to क्या you, आप खुदा के वादों पर एकदम ईमान रखते हैं, and you did this, और यस आप कह सकते हैं, all of God's promises are yes to me. आप सब कहें कि खुदा के तमाम तर वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। खुदा के तमाम वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। Do you think क्या आप इस बात को सोचते हैं, if you really believe something अगर आप हकीकी तौर पर किसी बात पर ईमान रखते हैं that you would make a statement of your faith? और फिर आप एक उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, Now this is what's about to happen. और ये फिर वजूद में आता है। This time इस वक्त when you say it और आज जब आप में बचाए गए हैं, and you believe it in your heart, जब आप कहते हैं और इस बात पर दिल से ईमान रखते हैं, whatever it is that you need Jesus to और do for you जिस चीज की today भी आपको जरूरत है मसीह में, will begin to manifest. वो आपके लिए हो जाएगी, Will begin to manifest. वो आपके लिए हो जाएगी। Whatever it is, वो आपकी कोई भी जरूरत है, there's nothing outside of it. और खुदा की हजूरी में कोई भी ऐसा काम नामुमकिन नहीं है। So this time I'm going to count to 3, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 3 गिनूंगा, and I want you to make me believe और आपने मुझे बताना है कि आपका ईमान किस कदर मजबूत है, that you believe और आप किस कदर का ईमान रखते हैं। that all of God's promises are yes to you. तमाम वादे खुदा के हाँ के साथ हैं। So on the count वादे खुदा के हाँ के साथ हैं। on the count of 3. Yes. Okay. अब ब्रदर कहने में दोबारा काउंट करेंगे 3 तक, और आपने बुलंद आवाज से कहना है ताकि 1, 2, 3. Amen. Now, Father, right now in the mighty name of Jesus, I decree that your promises begin to manifest in their lives. I loose the anointing for healing and deliverance. I loose the anointing for ordered steps and directed paths. I loose the anointing, Father God, to strengthen their physical man and their spiritual man. May they be strengthened by the power of your might in their inner man. May their bodies come under the divine influence of your word, that by your stripes they were and are healed. Father, you renew the strength of those that wait upon you. They mount up with wings like eagles. They run and are not weary. They walk and are not faint. Holy Spirit, I release provision. I command doors to open, and I decree opportunities will begin this day to abound, because we believe all of your promises are yes and amen in Christ Jesus. Amen. Amen. Final thing. Anybody doesn't know Jesus, lead them to Jesus. अगर आप खुदा को फॉलो करते हैं तो सब कहें जीसस। Amen. Thank you guys. खुदा आप सबको बरकत दे, बहुत शुक्रिया आपका।
We'll preach more if you want. I'm happy. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कहें मैं और कलाम सुनूं। You can go eat and come back if you want. Amen. I'm serious. हम सब लास्ट प्रेयर में शामिल होंगे और उसके बाद जो प्रेयर करवाना चाहते हैं या अपनी गवाही शेयर करना चाहता है वो स्टेज पर आए। ऐ खुदा का दोस्त ने हमें सिखाया है, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई उतनी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हमारे कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं और दोनों हाथ लहरा कर अपनी जिंदा खुदा को वेलकम करें, क्योंकि वही हमारा जोर है और हमारे सब कुछ में हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दुआ करवाना चाहता है वो भी आ सकता है यहाँ, और कोई अपनी गवाही शेयर करना चाहता है वो भी इस जगह पर पहुँच सकता है। मैंने सिर्फ 2 घंटे का कहा था, खुदा के बंदा जो है वो 10 घंटे लगातार वो खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं। ये खुदा ने उनको एक बड़ी ब्लेसिंग दी है। आमीन। ज़रूर है कि जो दुआ करवाना चाहते हैं वो सामने आ जाए। जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु बने आंदा वाली, जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु आंदा वाली, यसु दी मोहब्बत तो और वेगा न खाली। जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु बने आंदा वाली। और अले मिल सारे ऐसी तालियां बजाइए, यसु दी मोहब्बत विच गीत गाइए। और अले मिल सारे ऐसी तालियां बजाइए, यसु दी मोहब्बत विच गीत गाइए। मसावाली थाली कदे रवेगी ना खाली, दिल मसावाली थाली कदे रवेगी ना खाली। यसु दी मोहब्बत तो और वेगा ना खाली। जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु बने बागल, जेड़ा जेड़ा मारे ताली यसु बने बागल। नाल यसु दी जो गुंदाए पाखरू दा मसाओ दे कोल आ जाता है। रूह दे सजाई नाल यसु दी जो गुंदाए पाखरू दा मसाओ दे कोल आ जाता है। अरे पाखरू तेरी रखवाली, तेरी रखवाली।
बनेगा वाली जोश नाल जेड़ा होंठ यसू नहीं खोलदा फिर देखो यसू दे विचों के बोलदा जोश नाल जेड़ा होंठ यसू नहीं खोलदा फिर देखो यसू दे विचों के बोलदा सुरादा ईशा के यसू बनेदाए वाली तेरे सुरादा ईशा के यसू बनेदाए वाली यसू की मोहब्बत को और बेगाना काली तेरा तेरा मारता भी यसू बनेदा वाली अपने काल बुलावेगा दूर नारायण गावेगा अपने काल बुलावेगा रोल करेगा देगा ऐसा नासी रोल करेगा देगा ऐसा नासी इसी तरह वर्षन में आगे बढ़ते रहते हैं एक और गीत गाएंगे मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई नहीं मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला
से तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुआई को तेरी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का कागज मुझ पे जो बारी, देखो मैं जिंदगी गुजारी तो सारी। तेरे गुनाहों से मुझको छुड़ा के, तूने खुदा अपनी जिंदगी की मारी। मेरे गुनाहों से मुझको छुड़ा के, तूने खुदा अपनी जिंदगी की मारी। तूने दी हकीकत बता, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा हसरत को पूरी, तूने किया है। मेरा एक बोझ तूने लिया है। तेरी खुशी